السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے۔ اسرائیل نے جمعرات کو وسطی غزہ میں پناہ کے لیے استعمال ہونے والے ایک اسکول پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مقامی حکام کے مطابق 5 بچوں سمیت کم از کم 37 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تاہم اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اسکول کو حماس کے کمپاؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی فوج نے جس اسکول کو نشانہ بنایا وہ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے UNRW کے زیر انتظام چل رہا تھا، اور غزہ جنگ کے متاثرین وہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ پناہ گزینوں کے اسکول پر حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ کے صدر بائیڈن کے اعلیٰ معاونین 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی کے منصوبے پر پیش رفت کے لیے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے کے سربراہ فلپ لازرینی نے جمعرات کو کہا کہ اسرائیل نے غزہ کے اس کے ایک اسکول پر پیشگی انتباہ کے بغیر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گھر پناہ گزین نشانہ بن گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حماس کی فوجی اور حکومتی صلاحیتوں کی تباہی کے بغیر کوئی مستقل جنگ بندی نہیں ہوگی۔ مصر کو غزہ میں ممکنہ جنگ بندی اور اسرائیل کے ساتھ یرغمالی قیدیوں کے تبادلے پر حماس کی طرف سے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں۔ حکومت سے منسلک القاہرہ نیوز نے ایک اعلیٰ سطحی ذریعے کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کو ختم کرنے کے مقصد سے قاہرہ، دوحہ اور واشنگٹن کے ساتھ کئی مہینوں سے مذاکرات میں مصروف ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے آغاز کے بعد مئی 1944 تک نازی جرمنی فرانس پر قابض ہو چکا تھا۔ جرمنی کو فرانس سے پسپا کرنے کے لیے اتحادیوں نے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کے تحت شمالی فرانس کے ساحلوں پر فضائی اور بحری راستوں سے فوجی نفری اور جنگی ساز و سامان اتارا جانا تھا۔ اس فوجی آپریشن کو اوور لوڈ کا نام دیا گیا، اور اس کے آغاز کے دن کو ڈی ڈے کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نارمنڈی لینڈنگ کے 80 سال مکمل ہونے کے موقع پر فرانس میں ہیں، اور روسی جارحیت کے مقابلے میں ایک مضبوط ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ وہ فرانس کے سرکاری دورے پر ہیں، جہاں دوسری عالمی جنگ کی یادگار تقریبات ہو رہی ہیں۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس III نے جمعرات کو فرانس میں ڈی ڈے کی یادگاری تقریبات میں اتحاد کی اپیل کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ چارلس نے کہا کہ قوموں کو ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے جانیں گنوانے والے فرانسیسی شہریوں اور فرانسیسی مزاحمت کے ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور اب پاکستان، بھارت، افغانستان اور دنیا بھر سے کچھ اہم خبریں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ ایک آزاد ہند بحر الکاہل خطے کے لیے نئی دہلی کے ساتھ مزید تعاون کے لیے پر امید ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں صدر بائیڈن نے کہا کہ ہماری قوموں کے درمیان دوستی اس وقت بڑھ رہی ہے جب ہم لامحدود صلاحیت کے مشترکہ مستقبل کو ان لاک کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نریندر مودی کا کہنا ہے کہ انہیں صدر بائیڈن کی جانب سے کال موصول ہوئی ہے۔ نریندر مودی نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن کو بتا دیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کی جامع عالمی شراکت داری آنے والے برسوں میں بہت سے نئے سنگ میل طے کرے گی۔
भारत के आम इंतखाबात में सामने आने वाले नताइज पर बाज़ पाकिस्तानी मुबस्सरीन का कहना है कि इससे इस्लामाबाद की नई दिल्ली से मुतालिक पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अलबत्ता मुतवक्के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान नई शुरुआत कर सकते हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ भारत को करना है। अगर नरेंद्र मोदी अपना सियासी वर्सा छोड़ना चाहते हैं तो हमसाया मुल्क के साथ मसाइल को हल करने की तरफ जाएंगे। भारत के आम इंतखाबात में अगरचे भारतीय जनता पार्टी को तने तनहा सादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई है, लेकिन वो अपने इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। भारत में होने वाले हालिया इंतखाबात में बीजेपी की सबसे चौंका देने वाली शिकस्त अयोध्या में हुई है, जहां राम मंदिर वाक़ है और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रवां साल जनवरी में उसका इफ्तिताह किया था। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा हलके में वाक़ है। वो कई अशरों से बीजेपी की सियासत का मरकज रहा है। बीजेपी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि 100 किलोमीटर के दायरे में यानी फैजाबाद डिवीजन की तमाम सीटों पर शिकस्त खा गई है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि मुतादिद इशूज की वजह से बीजेपी की शिकस्त हुई है, जिनमें से कुछ मकामी हैं और कुछ कौमी हैं। बाज तज्जियाकार कहते हैं कि ये बीजेपी के मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करने की सियासत की शिकस्त है। हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की वजह से बहुत से तरक्याती काम किए हैं, लेकिन तरक्याती कामों और सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से मकामी बाशिंदों को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना है। अफगानिस्तान के एक सीनियर तालिबान रहनुमा और तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने, जो दहशतगर्दी के लिए अमेरिका को मतलूब हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है, जहां उन्होंने मेजबान मुल्क की क़यादत से मुलाकातें की। ये बात एक अफगान ओहदेदार ने बुध के रोज बताई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान ने अमारात के दारुल अबू धाबी में मंगल के रोज उनका खैर मकदम किया। अमेरिका की जानिब से हक्कानी के दौरे और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। तालिबान हुकूमत के आला तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में इस मुलाकात की तस्दीक की है, लेकिन मजीद कोई तफसील नहीं बताई। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में दर्जनों अफराद को कोड़े मारे जाने की मजम्मत की है और तालिबान हुक्काम से इस अमल को खत्म करने का मुतालबा किया है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन UNAMA ने इत्तला दी है कि मंगल को शिमाली सूबे सारीपुल में तकरीबन 63 अफराद को सरेआम कोड़े मारे गए। उन पर ज्यादातर चोरी, जिना और शराबनोशी समेत मुख्तलिफ जराइम का इल्जाम था। मिशन ने एक्स पर पोस्ट करदा एक बयान में कहा कि यूनामा जिस्मानी सजा की मजम्मत का इरादा करता है और इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के एहतराम का मुतालबा करता है। नेटो के सरबराह यान्स स्टोल्टनबर्ग ने जुमेरात को कहा कि कई अरकान ने रूस के हमले से दिफा के लिए यूक्रेन को हथियार फराहम किए हैं, लेकिन नेटो इत्तेहाद का यूक्रेन में अफवाज तैनात करने का कोई मंसूबा नहीं है। स्टोल्टनबर्ग ने फिनलैंड के दौरे के दौरान मजीद कहा कि इत्तेहाद तवील मुद्दती मालियाती अज़्म कहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हम यूक्रेन के साथ आखिर वक्त तक खड़े हैं। सूडान में जमहूरियत के हामी कारकुनों की कमेटी ने इत्तला दी है कि नीम फौजी दस्तों के हमले में एक गांव में एक ही दिन में 100 से ज्यादा हलाकतें हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को बड़े पैमाने पर नकल मकानी और फाका कशी के बारे में भी खबरदार किया है। मदनी मुजाहिमती कमेटी ने बताया है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF अप्रैल सन 2023 से फौज से बरसरे पैकार हैं और उन्होंने बुध के रोज
अल जजीरा रियासत के वस्ती गांव वादी नूरा पर भारी तोपखाने से हमला किया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं। और अब क्रिकेट। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जारी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच आज 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेल रही है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें शरीक हैं, जिनमें पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा के साथ मौजूद है। ए पाकिस्तान का 9 जून को न्यूयॉर्क में दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत के साथ होगा। पाकिस्तान 11 जून को न्यूयॉर्क में कनाडा के मद्दे मुकाबिल होगा, जबकि 16 जून को फ्लोरिडा में उसका मैच आयरलैंड से होगा। टी20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @VOA उर्दू पर। टी20 का जुनून वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयज़ा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।